Hello students, today we will be solving question number 3 of page number 56. From the following trial balance and adjustments given below of Reena and Aarti, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. We have to prepare all the 4 accounts. First, keep ready all the 4 accounts: trading account, profit and loss account, partners capital account, and balance sheet. Now we start with the posting. Purchases, trading account debit side, sundry debtors, balance sheet asset side, sales return लेस फ्रॉम सेल्स, सेल से माइनस किया जाता है. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहले बाई सेल्स लिखो, उसमें से माइनस करो सेल्स रिटर्न 1000 रुपीज़. नेक्स्ट वी हैव ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेब्ट्स, profit and loss account debit side. In profit and loss account debit side, you can write the equation of the bad debts and keep ready. There is 2 bad debts plus new bad debts plus new RDD, leave one line minus old RDD. Land and building assets, furniture assets. Land and building is having an adjustment, so write in the inner column. Land and building is having an adjustment, so write in the inner column 25,000. Furniture, balance sheet asset side, discount, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड का डिस्काउंट अलाउड होता है, क्रेडिट साइड का डिस्काउंट रिसीव्ड होता है. डेबिट साइड इज़ एन एक्सपेंस, क्रेडिट साइड इज़ अ इनकम. रॉयल्टीज इज़ एन एक्सपेंस. Royalty is an expense. For simple understanding, we can say royalty is also a commission. It's a kind of commission. So royalties, trading account debit side, 700 rupees. Rent, profit and loss account debit side, 1900. Salaries, profit and loss account debit side, right in the inner column as it is having an adjustment. Wages, 800 rupees. Trading account debit side, write the amount in the inner column. Insurance, profit and loss account debit side, 1500. Drawings of Reena and Aarti, partners capital account debit side, 2 drawings 2000 and 1000. Cash at bank, balance sheet asset side 11,500. Cash in hand 2,000 rupees. This we end up the trial balance debit side elements. Now we go for trial balance credit side elements. In credit side, the first element is sales. Sales to be recorded in trading account credit side by sales. सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस कीजिए, फ्रॉम द सेल्स सब्ट्रैक्ट द सेल्स रिटर्न. तो 58,200 minus 1,000 will give you 57,200. Sundry creditors, balance sheet liability side, purchase return. Sundry creditor is having an adjustment, so write in the inner column. Sundry creditor is having an adjustment, so write 25,700 in the inner column. RDD, then you have purchase return. लेस करो परचेज से माइनस कीजिए. परचेज रिटर्न है, परचेज से माइनस कीजिए. RDD, इट्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. RDD ये आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, माइनस करो ओल्ड RDD. डिस्काउंट, it's a credit side, it's given credit side, so write in inner column buy discount 50 rupees.
Commission, profit and loss account credit side, it's an income 250 rupees. Capital, it's a opening balance of capital account. Capital account, it is a opening balance of capital account Reena and Aarti. Partners capital account credit side, you can write by balance brought down. It is a opening balance. It is a opening balance of partners capital account 50,000 and 30,000. So we end up the postings from trial balance to various accounts. Now we go for adjustments. First adjustment is closing stock. Closing stock is valued at 22,000. Closing stock valued at rupees 22,000. Closing stock first effect. We write in trading account credit side buy closing stock 22,000. So write on credit side buy closing stock 22,000. Second effect, you will write balance sheet asset side 22,000. Second effect, you will write balance sheet asset side 22,000. Second adjustment, write off rupees 900 for bad and doubtful debts and create a provision for reserve for doubtful debts. Now this is write off rupees 900 for bad debt. ये क्या आपका न्यू बैड डेब्स है और आपका आरडीडी है. सो न्यू बैड डेब्स एंड न्यू आरडीडी. सो न्यू बैड डेब्स एंड न्यू आरडीडी आप पहला इफेक्ट डेटर से माइनस करना है. इट्स एन अमाउंट, इट इज़ गिवन डायरेक्टली इन अमाउंट. सो सन्ड्री डेटर्स से आप पहले सन्ड्री डेटर्स 40,000 एसेट्स में से माइनस करो. माइनस न्यू बैड डेट 900 माइनस किया, कितना मिला 39,100. फिर उसमें से माइनस करो न्यू आरडीडी. उसमें से माइनस करो न्यू आरडीडी which will be 1,000. So 39,100 minus 1,000 will give you 38,100. It is given in adjustment, so it will have two effects. So two effects. Second effect will be in profit and loss account debit side. प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आपने पहले से इक्वेशन लिखा हुआ है. टू बैड डेब्स प्लस न्यू बैड डेब्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी. सो न्यू बैड डेब के सामने 900 लिखो, न्यू आरडीडी के सामने 1000 लिखो. तो ये तीनों प्लस करो 500 प्लस 900 प्लस 1000 इट कम्स टू 2400. उसमें से आप 800 माइनस करो, यू विल बी गेटिंग 1600. दिस इज ओल्ड दिस इज टोटल बैड डेब्स. सो टोटल बैड डेब इज 1600. देन थर्ड एडजस्टमेंट, create a provision for debtors on discount on debtors. Create a provision for discount on debtors at 3% and creditors at 5%. So we are giving discount to debtors. When we are giving discount to debtors, it is our loss. It is kind of an expense. So डेटर्स के पास से 3% हमें कम मिलेगा. वी विल गेट लेस एज वी आर गिविंग देम डिस्काउंट. तो फर्स्ट इफेक्ट यू विल शो इन बैलेंस शीट एसेट साइड लेस फ्रॉम डेटर्स. आपने पहले आरडीडी माइनस कर दिया है, उसके बाद माइनस करो रिजर्व फॉर डिस्काउंट. माइनस रिजर्व फॉर डिस्काउंट अब माइनस करोगे. सो रिजर्व फॉर डिस्काउंट अब माइनस करोगे. सो रिजर्व फॉर डिस्काउंट इट इज 3%. सो कैलकुलेट 3% ऑफ 38,100.
आप 38,100 को मल्टीप्लाई करोगे 3/12 से। 38,100 को मल्टीप्लाई करो 3/12 से, you will be getting 1,143 rupees. Now subtract this 1,143 rupees. 38,100 में से 1,143 को माइनस कीजिए, कितना मिलेगा आपको? 36,957. 38,100 minus 1,143, you will be getting 36,957. इसका सेकेंड इफेक्ट विल अपीयर इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. यू कैन सी जहाँ पे हमने डिस्काउंट लिखा है, डिस्काउंट 1,000 रुपीज़ विच इज़ गिवन इन द इनर कॉलम 1,000 रुपीज़. उसमें आप रिजर्व फॉर डिस्काउंट को ऐड करेंगे. अगर समझो डिस्काउंट नहीं दिया है, इफ डिस्काउंट इज़ नॉट गिवन, सो राइट डायरेक्टली इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड to reserve for discount 1143. But here in this problem discount is given to you, so to discount उसमें ऐड करो reserve for discount 1143, you will be getting 2,143. Then we have creditors at 5%. Creditors के ऊपर discount is also given. तो ये हमारे लिए इनकम है. क्रेडिटर्स कौन होते हैं? सप्लायर होते हैं जो हमको माल सप्लाई करता है. क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन हु सप्लाइज अस गुड्स ऑन क्रेडिट. तो क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट दे रहा है, दे आर गिविंग अस अ डिस्काउंट, सो इट इज़ आवर इनकम. सो फर्स्ट इफेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्काउंट अमाउंट. सो sundry creditor is 25,700. sundry creditor is 25,700. इसके ऊपर आप निकालो 5%, 1285. so 25,700 पे 1285 माइनस करो, कितना मिलेगा आपको? 1285 माइनस करो, so you will be getting 24,415 rupees. This is reserve for discount on creditors. Creditors are giving a discount. It is our income. So we write in profit and loss account credit side. By discount उसमें आप ऐड करो बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट 1285. 50 plus 1285 will give you 1,335 rupees. So the reserve for discount on debtors and reserve for discount on creditors. डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या करना है आपको? उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, and then that amount you have to less from the debtors and creditors. और उसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. Then we have the next adjustment, outstanding expenses which are due but not paid. उसका टाइम आ गया भरने के लिए, बट हम लोग ने कोई कारण से भरा नहीं है. सो वी राइट वेजेस एंड सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग. तो वेजेस एंड सैलरीज में ऐड करो पहला इफेक्ट. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमें लिखा हुआ है 2 वेजेस, उसमें ऐड करो प्लस करो 700 रुपीज़ वेजेस, और सैलरीज में ऐड करो 800 रुपीज़. वेजेस को ऐड किया, इट कम्स टू 1,500. सैलरीज में ऐड किया, इट कम्स टू 3,800. इसका सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा
बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है जिसे हमें पे करना है. इट इज़ एन एक्सपेंसेस विच वी हैव टू पे, so it is our expenses. So it is our expenses. So you write in balance sheet, liability side, wages 700, salaries 800, total up comes to 1500. Then we have adjustment number 5. Insurance is paid for 15 months with effect from 1st April 2018. हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है और इस इंश्योरेंस पॉलिसी में हमने लिया फर्स्ट डेट को लिया, 1 अप्रैल को लिया, और हमने इसका प्रीमियम 15 महीने के लिए भर दिया है. वी हैव पेड द प्रीमियम फॉर 15 मंथ्स. हमने इसका प्रीमियम 15 महीने के लिए भर दिया है. बट क्या हमारा फाइनल अकाउंट 15 महीने के लिए बनता है? वी प्रिपेयर final account for a period of 1 year. So you have to show all the expenses, all the incomes for a period of 1 year only. तो जो इंश्योरेंस अमाउंट जो है आपका है 1500. ये 1500 15 महीने के लिए भरा है, तो हमें सिर्फ 12 महीने का दिखाना है फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. तो जो बचा जो 3 महीने का है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रीपेड हो जाएगा. जो बचा जो 3 महीने का है वो आपके लिए प्रीपेड हो जाएगा, यानी आपने उसे टाइम से पहले ही भर दिया है. आई हैव गिवन इट्स वर्किंग नोट इन द सॉल्यूशन. वर्किंग नोट हम इस तरह से करते हैं. Insurance is paid for 15 months from 1st April 2018, that is from the beginning. We are paying the insurance for 15 months from 1st April 2018, that is from the beginning. तो 1500 आपने भरा है कितने महीने के लिए? 15 महीने के लिए भरा है आपने. So therefore insurance for 1 month, 1 महीने के लिए इंश्योरेंस कितना होगा? आपने 1500 भरा है, ये आपने 1500 कितने महीने के लिए भरा है? 15 महीने के लिए भरा है. सो 1500 को डिवाइड करो 15 से, कितना मिलेगा? 100 रुपये, यानी कि 1 महीने का कितना आ गया इंश्योरेंस? 100 रुपये आ गया. फॉर 1 मंथ द इंश्योरेंस इज 100. फॉर 1 मंथ द इंश्योरेंस इज 100. तो प्रीपेड इज़ फॉर हाउ मेनी मंथ्स? आपने कितने महीने का पहले ही भर दिया है? 3 मंथ्स का आपने पहले ही भर दिया है. तो इट कम्स टू 100 into 3, इट विल गिव यू 300 rupees. So what is the effect? How we are going to give the effect? First effect, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएंगे. आप इंश्योरेंस यू हैव रिटन द इनर कॉलम टू इंश्योरेंस 1500. From that you subtract prepaid 300 rupees. It comes to 1200. So 1500 minus 300, it comes to 1200. Second effect, you will write balance sheet asset side. In the balance sheet asset side, you write on prepaid insurance rupees 300. आई हैव रिटन वर्किंग नोट नंबर 1 एडजस्टमेंट फाइन. सोल्यूशन के ऊपर दिया हुआ है कि किस तरह से आपके 300 रुपीज़ आया है. इंश्योरेंस का अमाउंट जो है वो 15 महीने के लिए दिया है. वी आर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. इसका मतलब ये हुआ कि 3 मंथ्स का जो इंश्योरेंस है इट इज़ प्रीपेड. तो वो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू शो एज प्रीपेड. तो उसके लिए पहला कैलकुलेट करो कि इंश्योरेंस का अमाउंट कितना होगा प्रीपेड. दैट इज़ 300 रुपीज़ इज़ कमिंग प्रीपेड.
इसका इफेक्ट आप दोगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू इंश्योरेंस 1500 माइनस प्रीपेड 300, it comes to 1200. This is prepaid. Second effect, balance sheet asset side prepaid insurance rupees 300. Adjustment number 6, depreciate land and building at 5%. सो आप एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन करो 5% का। 25,000 माइनस डिप्रिसिएशन 5%, it comes to 1250 rupees. सो 25,000 में से माइनस करो 1250 रुपीज़, यू विल बी गेटिंग 23,750 रुपीज़। पहला इफेक्ट आपने क्या किया, एसेट से माइनस किया है। पहला इफेक्ट एसेट से माइनस करो 25,000 माइनस 1250, इट विल कम्स टू 23,750 रुपीज़। डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इज़ अ लॉस फॉर द बिजनेस, ये बिजनेस के लिए लॉस है। सेकेंड इफेक्ट इसका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1250। Clear? And the last adjustment is Reena and Aarti are sharing profits and losses in the ratio, in their capital ratio. मीन्स यहाँ पर रेशियो इक्वल बोला नहीं है, यहाँ पर कोई रेशियो दिया नहीं है, 3:1 ऐसा कुछ दिया नहीं है। इट इज़ टोल्ड दैट यू हैव टू द प्रॉफिट शेयर रेशियो विल बी एज पर देयर कैपिटल रेशियो। एज पर देयर कैपिटल रेशियो इसका मतलब क्या, कैपिटल रेशियो कितना है, 50,000 है 30,000। योर कैपिटल रेशियो इज़ 50,000 एंड 30,000। तो आप 50,000 को डिवाइड करो 30,000 से, 40 get cancelled in the numerator and the denominator, so what is remaining, 5:3 is remaining. So the ratio will be 5:3. This ratio you will be using for distribution of profit in the profit and loss account. Profit and loss account. With this, all adjustment gets over. Now we have to close the account. अकाउंट किस तरह से क्लोज किया जाता है, आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आइए, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड को प्लस करो 18,100, 35,700 और 1,500, ये पहले प्लस करो। फर्स्ट यू एड अप द डेबिट साइड, आउटर कॉलम अमाउंट 18,100, 35,700, 1,500. Now you total the credit side amount. Credit side amount 57,200, 22,000. Credit side amount 57,200 and 22,000. On adding this, you will be getting credit side as a higher amount, यानी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रहा है। आप डेबिट साइड टोटल करोगे, वापस बता रहा हूँ, डेबिट साइड का टोटल कीजिए 18,100, 35,000 प्लस 700 प्लस 1,500, उसको टोटल कीजिए आप। फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को टोटल कीजिए 57,200 प्लस 22,000 को कीजिए। टोटल करने के बाद ये दिख रहा है कि डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड से कम है। सो व्हाट यू विल डू, you will write the credit side amount on both the side, 79,200, 79,200। फिर ये 79,200 में से आप डेबिट का जो प्लस करने के बाद जो अमाउंट आया उसको माइनस करो। डेबिट साइड का जो अमाउंट आपने प्लस किया, कुछ मिला होगा आपको, वो अमाउंट आप क्या करो 79,200 से माइनस कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको 23,200।
ये डेबिट साइड में कम है, इट इज़ लेस ऑन डेबिट साइड में कम है, तो डेबिट साइड में लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 23,900। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 23,900. This gross profit will be transferred to profit and loss account credit side. This profit will be transferred to profit and loss account credit side by gross profit brought down 23,900. Now you close the profit and loss account. Total the debit side outer column amount 1,600, 2,143 plus 1,900, 3,800, 1,200, 1,250. ये आप प्लस करो। सिमिलर वे क्रेडिट साइड का भी आप प्लस करो 1,335, 250 प्लस 23,900। ये प्लस करने के बाद आपको कितना अमाउंट आया? 25,485 आया। You got an amount of 25,485. सो अब ये दिख रहा है कि डेबिट साइड में अमाउंट कम दिख रहा है, क्रेडिट साइड में ज़्यादा दिख रहा है। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट राइट ऑन बोथ द साइड 25,485, 25,485 दोनों बाजू लिखो और उसमें से डेबिट अमाउंट माइनस करो, डेबिट का अमाउंट माइनस करो। So you will be getting 13,592. You will be getting 13,592. This is net profit. This net profit should be distributed among the partners. तो आपको रेशो क्या मिला है? 5:3 मिला है। 13,592 को मल्टीप्लाई करो 5 से, डिवाइड करो 8 से। 8 कहाँ से मिला? टोटल प्रॉफिट 5 + 3 8। सो 13,592 को मल्टीप्लाई करो 5, डिवाइड करो 8 से, मल्टीप्लाई करो 5 और डिवाइड करो 8 से, तो यू विल बी गेटिंग 8495 फॉर रीना. Rina's share is 8495. And Aarti's share is 13,592 को मल्टीप्लाई करो 3 से, डिवाइड करो 8 से, यू विल बी गेटिंग 5097. दोनों प्लस करो, 8495 प्लस 5097 दोनों प्लस करो, कितना मिलेगा? 13,592. This net profit you transfer to partners capital account credit side. This net profit you transfer to partners capital account credit side by net profit brought down 84955097. Now you add up the credit side, Rina's amount and Aarti's amount. 50,000 plus 8495 will give you 58,495. Write this amount on both the side, 58,495, 58,490 दोनों बाजू लिखो. सेम वे आरती का 30,000 plus 5097. Add up this 30,000 plus 5097, you'll be getting 35,097. From this you subtract the 1,000 of Aarti. So you will be getting 34,097. This is gross. This is the closing balance of capital account. This is the closing balance of capital account. Now this balance will be carried to balance sheet liability side under the heading capital. So capital में लिख लो रीना एंड आरती. रीना 56,495, आरती 34,097. दोनों को प्लस करो, यू विल बी गेटिंग 90,592. रीना का 56,495, आरती का 34,097 will give you 90,592. Now all adjustments and postings over. Balance sheet will get tally with the amount 1,16,507.
With this, the sum is completed. Please solve and see in the notebook. If anywhere you have any doubt with any adjustment or posting, please let me know. Thank you, students.